of recombinant DNA technology, where we are studying 6-7 steps. Some are merged together. So till now we have discussed how the DNA is isolated from a cell. If it is bacterial cell, let me recap the topics which we have discussed till now. So how to separate the DNA? DNA is found in the nucleus of a cell. So if we are isolating the DNA from bacterial cell, we need to use lysozyme enzyme to break the cell wall of this bacteria. Or if it is fungus, then we need to use chitin. Or if it is plant cell, then we need to use cellulase. So this is how we will be breaking the cell wall of a cell, and DNA, RNA, proteins, many more things will be coming out. So many techniques we will be using for separating them. And lastly, whenever we are having mix of protein, RNA and DNA, our target is to isolate the DNA from the debris. Debris में क्या mix होता है? RNA, DNA and proteins. Okay. So इसको दूर करने के लिए, to remove the RNA and proteins from there, we need to use RNase, then proteases. These enzymes will break the respective molecule. Like this RNase will break RNA, this protease will break protein. So this is how the protein and RNA will be broken, DNA will be left, but still we are not free from the contamination of RNA and proteins debris. So we will be adding the chilled ethanol to that solution. हम क्या करेंगे, जिस भी टेस्ट ट्यूब में ये काम करवा रहे हैं, we will be adding this chilled ethanol or chilled ethyl alcohol into that one. This alcohol will precipitate this DNA, and DNA will be coming out in the loop form. अलग से lump अपने को group उसका मिल जाएगा, and we will be separating it. Then when we have isolated the DNA, it may be a cloning vector or it can be our desired gene. But desired gene we have to cut from the full DNA. जैसे हमारा DNA है, and we want to take insulin gene from that one. So DNA is 2.2 मीटर long. उसमें से एक छोटा सा जीन जिसकी साइज बहुत छोटी है, कुछ मिलीमीटर पे अपन कह सकते हैं, तो उसको हमें उसमें से सेपरेट करना है. तो वी हैव टू यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. हमें क्या यूज करना है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाना है उसको. एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाने के बाद में वी हैव टू सेपरेट इट यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस where agarose gel is used. Agarose gel is obtained from two red algae, Gelidium and Gracilaria. And after this gel has been prepared, some wells will be cut where we want to upload the samples. So the end where we will be loading the samples, DNA samples, it's negative electrode. Okay, and here we will be uploading what? The fragments of the DNA which we have obtained after its digestion with restriction enzyme. उसके restriction enzyme के digestion के बाद में उसको यहाँ पे upload हम करेंगे. And the another end will be attached to positive end, and electrics after uploading or loading of this DNA, the electric supply will be switched on. DNA will run through the pores which are there. Shorter DNA will be isolated on this towards this positive end, and longer DNA will be left behind. वो पीछे रह जाएगा क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी है, उसको क्रॉस होने में टाइम लगता है. So this is how the DNA is separated on the gel, but still we cannot see the bands, DNA bands. DNA bands मतलब क्या है? The fragments, different size fragments, वो हमें दिखते नहीं है. Then we will be using one dye which is carcinogenic. ये डाई क्या है? कार्सिनोजेनिक है. मतलब कैंसर पैदा करने वाली डाई है. We will be
coloring this gel with the help of this ETBR, ethidium bromide, and after it's staining with this dye, we will be keeping this gel in a UV chamber, जहाँ पे UV लाइट पड़ेगी इसके ऊपर. UV लाइट जब इसके ऊपर से पड़ती है तो हमें जो बैंड्स इसके पीछे से हम देखते हैं तो हमें ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखते हैं, सबके सब जो डीएनए बैंड्स हैं. ओके, तो इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था. अब आगे हम क्या करना है, हमें उस डीएनए के जो सैंपल्स हैं, जो हमें डिजायर्ड डीएनए है, दैट वी हैव टू आइसोलेट फ्रॉम दिस जेल. यहाँ पे हमने जेल से इस डीएनए को निकाल लिया. डीएनए बैंड्स आर कट फ्रॉम द एग्रोथ जेल. जैसे मान लो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये वेल्स है, ये डीएनए है और एक ये. इनको आपको क्या है, जब निकालते हैं यहाँ से बाहर, तो इस निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? अगर आप सेपरेट करते हैं यहाँ से, दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन. ठीक. एंड द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स डीएनए एंड कट वेक्टर. अब ये प्रोसेस सबके साथ करनी है. वी हैव टू सेपरेट द वेक्टर डीएनए और वी हैव टू सेपरेट द सोर्स डीएनए, डिजायर्ड जीन. दो टाइप के डीएनए हमको सेपरेट करने पड़ेंगे. एंड सेपरेट प्रोसीजर इज टू बी यूज फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो हम डीएनए जो अपना इंटरेस्ट का है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको सेपरेट करेंगे. दूसरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम अपना वेक्टर को अलग करेंगे. ठीक है. जब हम इनको यहाँ से कट कर लेंगे इल्यूशन प्रोसेस के, तो दे आर मिक्स टुगेदर. जैसे ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर है एंड दिस इज आवर डिजायर्ड जीन. इनको अपन लाइगेज एंजाइम की हेल्प से मिक्स करते हैं. देन लाइगेज एंजाइम विल बी joining these two things together and it will be created as rDNA. ये हमारा क्या तैयार हो गया, rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा तैयार हो गया. ठीक है. क्लियर टिल नाउ स्टूडेंट्स? इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी. डोंट हेजिटेट. हेजिटेट नहीं करना है, झिझक नहीं होनी चाहिए आपको. इज इट क्लियर टिल नाउ? देन आई विल मूव फॉरवर्ड. Yes or no? Yeah. Okay. So now the step which is, अब हमने बोल तो दिया बड़ी आसानी से कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर डीएनए को जोड़ दिया, बट ये एक्सपेरिमेंट इतना आसान नहीं है. इसके लिए हमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और क्लोनिंग वेक्टर के बहुत सारे क्योंकि बार बार हम करेंगे. कोई काम हम करते हैं तो पहली बार में सक्सेसफुल किसी का नहीं होता है. तो हमें क्या, ट्रायल एंड एरर ये करते करते लास्ट में सक्सेस मिलती है. तो वी नीड मैनी मोर कॉपीज ऑफ वेक्टर डीएनए एज वेल एज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो हमें उसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है. फॉर दैट वी विल बी यूजिंग वन प्रोसेस, दैट इज पीसीआर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये वर्ड अपने आप में बहुत कुछ बताता है, पॉलीमरेज. हियर द एंजाइम विच इज यूज्ड is DNA polymerase. DNA word we have skipped because obviously we know we are amplifying here DNA only, not RNA. तो इसलिए हम यहाँ पर DNA polymerase एंजाइम काम में लेंगे. और इसकी चेन रिएक्शन मतलब ये इतनी साइकिल में चलेगा कि बार बार इनिशियल फिर एंड, वही जीन ऑफ इंटरेस्ट बार बार रिपीट होगा. एट द एंड आफ्टर सम टाइम वी विल बी गेटिंग बिलियंस ऑफ कॉपीज of that particular gene of interest. So this reaction which use polymerase, DNA polymerase, and it happens again and again, it is repeating again and again, one chain is repeated. That's why this process is known as PCR polymerase chain reaction. So what we need here, ये मशीन दिखाई गई है, ये क्या है? इस मशीन को हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर. The machine which is used to polymerize or to amplify the gene of interest is known as thermal cycler. थर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टेम्परेचर अराउंड 90 और 94 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है.
तो इतना टेम्परेचर ले जाना पड़ता है हमें इस प्रोसेस को हैपन करवाने के लिए, क्योंकि बिकॉज द नेचुरल polymerase or we can say DNA replication process takes place in body, तो वो नेचुरल होती है. बट वेन एवर दिस प्रोसेस इज टू बी हैपन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो मोर एंड मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. तो इसलिए इसको हम थर्मल यानी टेम्परेचर वाला, हाई टेम्परेचर वाला साइक्लर मीन्स दिस साइकिल विल्स रिपीटेड अगेन. वन साइकिल इज देयर, वन थ्री स्टेप्स आर देयर, दीज थ्री स्टेप्स आर रिपीटेड वन बाई वन अगेन एंड अगेन. दैट्स वाई दिस मशीन इज नोन एज थर्मल साइक्लर. क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है इस प्रोसेस के लिए वो देख लेते हैं. पहला, एक तो मशीन होगी थर्मल साइक्लर, TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं, थर्मल साइक्लर. दूसरा, ए स्पेसिफिक DNA पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पे काम करे. हमारी बॉडी का जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो कितने टेम्परेचर को सहन कर सकता है, कोई बता सकता है क्या? कितने हाईएस्ट टेम्परेचर तक काम करता है वो? यस स्टूडेंट्स, कितने हाई टेम्परेचर तक ही वो काम करता है? एनीवन? ओके, नो वन इज रेस्पॉन्डिंग. अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस ओनली हमारी बॉडी का टेम्परेचर वहीं पर तक काम करता है वो. ओके, देन थर्ड वन इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि अपन ने देखा पॉलीमरेज इसमें DNA रेप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड्स. एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स को अपन जोड़ेंगे और हमारी प्रोसेस इस तरह से चलती जाएगी. 4 नंबर, RNA प्राइमर. DNA प्राइमर्स क्या है? DNA के बने होते हैं यहाँ पे primers. So 4 things are there which are extensively used in this process. So primer क्या है यहाँ पे? Primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of the DNA. Primers आपको पहले बता चुके हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर RNA जो DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस उसमें RNA होता है, बट यहाँ पर क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, the primers are here used here are made up of DNA. So दो, जैसे मान लो हमारा ये DNA है तो यहाँ पे इतना सा प्राइमर लगेगा, तो प्राइमर्स के बिना ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, इनिशिएट नहीं होगी. So this primer is made up of DNA and it is a small oligonucleotide sequence. Okay, so this step has this process has 3 steps. One is denaturation, annealing and extension. हमारा ये DNA डबल स्टैंडर्ड है, ये फ्रेगमेंट है, इसमें हमें जो पार्ट हमें एम्पलीफाई करना है, जैसे यहाँ पे इसने स्पेसिफाई का रीजन टू बी एम्पलीफाइड, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा DNA हमें क्या करना है? एम्पलीफाई करना है. ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस में वी विल बी हीटिंग इट अप टिल 94 डिग्री सेल्सियस. कुछ बुक्स में आपको 92 डिग्री 90 डिग्री मिल सकता है. So at high temperature, the hydrogen bonds between these bases of this DNA, न्यूक्लियोटाइड की जो बेसेज हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे and these two strands will be separated from each other. ये strands हमारे सेपरेट इससे हो जाएंगे. This process is known as what? Denaturation. इसको हम denaturation बोलते हैं. ये इस तरह से यहाँ पे जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, लाइन लाइन बना रहा हूँ स्मॉल, ये सब क्या है? बेस पेयर्स है, बेसेज है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? वी विल बी अटैचिंग. एनिलिंग मीन्स अटैच करना प्राइमर्स को. प्राइमर्स को अटैच करते हैं 3' एंड पे, बिकॉज बोथ द
strands will be acting as template strand. We will be attaching the primers here. इसके 3 प्राइम एंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का उसके होते हैं, तो उसका प्राइमर्स का जो एंड जहाँ से शुरू होगा वो 5 प्राइम हो जाएगा, दोनों एंड्स पे हो जाएगा साहब, यानी 3 प्राइम पोलरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये नया स्ट्रैंड जो बनता है, तो इसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलरिटी है दैट मस्ट बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया एनीलिंग। सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में अपन ने यहाँ पे सेकेंड स्टेप भी कर लिया, यहाँ पे एनीलिंग और ये वाला डीनेचुरेशन। अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा रिमूव करूँगा यहाँ से। आपने प्राइमर लगा दिया, यहाँ पर प्राइमर लगा दिया, थ्री प्राइम 5 प्राइम, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना आपको कि कहाँ 5 प्राइम है 3 प्राइम है। इसके मार्क्स एक एक छोटी छोटी चीज़ अगर आप छोड़ेंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। नाउ एक्सटेंशन, इन दिस प्रोसेस व्हाट विल बी हैपनिंग, टैग पॉलीमरेज। अब देखो टैग नाम बताऊंगा अभी क्या मतलब है इसका, एंड सम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जो आएंगे चारों प्रकार के, जैसे DATP, DCTP, ये प्रोसेस वैसी है जैसे रेप्लिकेशन हमारा है, ये आर्टिफिशियल हम बाहर करवा रहे हैं। DGTP, DCTP, 4 प्रकार के बहुत सारे ये न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स इसके साथ में हम मिला देंगे, एंड वन टैग पॉलीमरेज। अब क्या है कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे काम करता है, टेम्परेचर लगभग 65-70 के आसपास में रहता है। तो ये हमारा जो बॉडी का जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वो 37 से ऊपर काम नहीं करता है। तो हमें ऐसा एक एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर को विद स्टैंड कर सके, दैट कैन विद स्टैंड द हाई टेम्परेचर। तो वन बैक्टीरिया इज देयर, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, ये गर्म झरनों में पाया जाता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस को भी सहन कर सकता है ये बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको आइसोलेट किया, क्योंकि वो गर्म पानी में रहता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका एंजाइम भी उस टेम्परेचर को सहन करता होगा। तो इससे जो एंजाइम सेपरेट किया गया उसको नाम टैग पॉलीमरेज, टैग मतलब टी टेकन फ्रॉम जीनस, AQ टेकन फ्रॉम द स्पीशीज, 2 लेटर ऑफ द स्पीशीज, जीनस एंड 2 लेटर फ्रॉम स्पीशीज एंड पॉलीमरेज नेम। तो ये एंजाइम क्या है, इसका पॉलीमराइजेशन हाई टेम्परेचर पे भी कर देता है। ओके, अब क्या है, जैसे आपने ये सब काम कर दिया, प्राइमरी एनीलिंग हो गया आपका, तो यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये 5, ये 5। अब एक के बाद कॉम्प्लीमेंटरिटी को देखते हुए ये पूरा का पूरा पॉलीमराइजेशन होता जाएगा और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चला जाएगा। तो एक डीएनए डबल हेलिक्स वाले डीएनए से 2 डीएनए हमारे, 2 डीएनए स्टैंड, सॉरी 2 हमारे डीएनए बन चुके हैं। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे बन चुके हैं। तो इस साइकिल को आप फिर से दोनों स्टैंड, बोथ द स्टैंड्स विल बी एक्टिंग एज अगेन एज टेम्पलेट स्टैंड, और ये प्रोसेस इनके साथ फिर से होगी। दिस साइकिल विल बी रिपीटेड फॉर मेनी टाइम्स, देन आफ्टर अराउंड 30 साइकिल्स वी विल बी गेटिंग 1 बिलियन कॉपीज ऑफ 1 डीएनए। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमारी 1 बिलियन, यानी 1 अरब, हिंदी में क्या बोलेंगे, 1 अरब हमारी कॉपी यहाँ पे तैयार हो जाएगी, 1 बिलियन। ठीक है ना, तो हमारी ये प्रोसेस होती है। अब एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। डीनेचुरेशन, यस यस यस, बोलिए। Sir, your screen is not visible. Not visible? It is shown visible here. Anyone else whose screen is not visible?
विजिबल है? ओके, so one thing we can do, this is recorded and I will be uploading on the YouTube, there you can see. अगर ऐसा एक दो लोगों के साथ में होता है तो हम ये देख सकते हैं। बाकी लोगों को दिख रही है बेटा? इज इट विजिबल रेस्ट ऑफ यू? नहीं, नहीं दिख रही है? Okay, no problem. Yeah, you listen to me. I will send this video to you today only, directly. It is denaturation process में हम क्या करते हैं, the heating of, or I can show you this one here. Open whiteboard here in this one. ये दिख रहा है यहाँ वाला whiteboard बेटा सबको? यहाँ वाला whiteboard दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब टेक्निकल एरर है। ठीक है, तो